Good morning, students. Today we are going to study chapter number 4 in geography, and chapter name is maps. Before starting the chapter, let's have a quick view which we will study, what the things which we will study in this chapter. We'll study about the globes and map, the what different type of map tell us, the essential features of map, and the difference among the sketch, map and plan. So let's start our chapter. Can you see the whole earth at one time? No, unless you are looking at it from space. Can you see, क्या आप देख सकते हैं अर्थ को फ्रॉम वन टाइम, एक साथ पूरी दुनिया को देख सकते हैं? नो, हम नहीं देख सकते अनलेस वी आर फ्रॉम द स्पेस. हम केवल स्पेस पर हैं, देन ओनली वी आर एबल टू सी द अर्थ एज होल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ. Even satellite photographs show only a part of the earth. Whenever we see the earth, the photographs taken by the satellite, जो satellite photographs हम देखते हैं, in that only we can see the one part of earth. So how do we study about the earth? So question arises, how do we study about the earth? तो हम earth के बारे में कैसे study करते हैं? We make small model of the earth that help us to study it as a whole. तो हम लोग क्या करते हैं? We make small model of the earth. हम अर्थ के small model बनाते हैं. With the help of that model, we study about the earth. The different region of the earth can be studied with the help of pictures, diagrams, sketches and maps. And other things which help further in the study of earth is with the help of picture. हम पिक्चर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ स्केचेस एंड मैप्स, तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम अर्थ की स्टडी करते हैं. वी हैव रीड इन द प्रीवियस लेसन दैट अ ग्लोब इज अ स्मॉल 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट, एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो इन योर 5th क्लास, कि व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. कि ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ. It is most accurate way to represent the earth. With the help of globe, we can represent the earth. ग्लोब की सहायता से हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ को शो करते हैं. A globe, however, has certain disadvantages. It is bulky and cannot be carried or stored easily. कि हम ग्लोब को मानते हैं कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है, बट ग्लोब में भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ कमियां हैं. दैट इज़ कि ग्लोब इट इज़ बल्कि, वो भारी होते हैं, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है. इट कैनॉट, सेकेंड वन, इट कैनॉट शो द डिटेल ऑफ लैंड फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सो ऑन. Students, it is not possible to show the small details of landforms and the location of small town on the globe. Globe पर अर्थ लैंडफॉर्म की स्मॉल डिटेल्स को शो करना और स्मॉल टाउन्स की लोकेशन को शो करना पॉसिबल नहीं होता है. Moreover, it cannot provide detailed information about climate, vegetation, agriculture, minerals, transport, रूट्स एंड सो ऑन. और ग्लोब पर हमें सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं मिलती. कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट रूट. लार्जर ग्लोब्स कैन शो सम डिटेल्स, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल. नाउडेज flatable folding globes are available, but they are not used commonly. The globes which are larger in size, जो ग्लोब थोड़े साइज में लार्जर हैं, they provide us some information. वो हमें कुछ information प्रोवाइड करते हैं, but it is very difficult to handle them. पर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. Nowadays, new type of globes are there which are foldable. Flatable globes भी हैं, some foldable globes are there, available is there, but they are not commonly used by the people. उन्हें हम commonly अभी ज़्यादा use नहीं करते हैं. Map. A map is a representation of the earth as a whole or a part of the earth
drawn on a flat surface according to a given scale. Now student, what is a map? Map क्या है? Map is a representation of earth. अर्थ को हम जब प्रेजेंट करते हैं इन अ फ्लैट सरफेस, जब हम फ्लैट पेपर पे ड्रॉ करते हैं, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करके शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैप. एंड मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन विद स्केल. मैप जब हम एक्यूरेट बनाते हैं तो मैप में हम स्केल यूज़ करते हैं, विच वी विल स्टडी फर्दर, जो हम आगे समझेंगे कि स्केल क्या है. तो क्लियर स्टूडेंट, व्हाट इज मैप? मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. कि अर्थ को रिप्रेजेंट करना वो भी फ्लैट सरफेस पे, दैट इज मैप. इट कैन नॉट शो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, cities and even local areas with all the details. It is easy to handle or to carry as it can be rolled up or folded. It can show continent, कि मैप पर कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़ एंड इवन लोकल एरियाज़ को हम शो कर सकते हैं विद डिटेल, जबकि ग्लोब में वो पॉसिबल नहीं होता है. एंड इट इज़ ईजी टू हैंडल द मैप. ग्लोब से अगर हम कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर ग्लोब एंड मैप, तो इट इज़ ईजियर टू हैंडल अ मैप एज कंपेयर टू द ग्लोब, बिकॉज वी कैन रोल अप द मैप एंड वी कैन ऑल्सो फोल्ड द मैप. हम मैप को रोल अप करके भी वी कैन ईजीली टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वी कैन फोल्ड द मैप ऑल्सो, बट वो चीज़ें हम ग्लोब पर नहीं कर सकते. तो इट इज़ वेरी ईजियर टू हैंडल अ मैप कंपेयर टू ग्लोब. नाउ मैप्स however have a disadvantage. लेकिन मैप में कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मैप को हम आसानी से ले जा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. A flat map cannot accurately show the curved surface of the earth. Now first disadvantage students कि मैप हमें एक्यूरेट कर्व्ड सरफेस जो होते हैं, कर्व्ड मीन्स होता है जो घुमावदार सरफेस होते हैं, उनको हम मैप पे आसानी से एक्यूरेटली शो नहीं कर सकते. When a map is drawn, the shapes and the size of a continent and the ocean get distort. कि जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन का जो शेप और साइज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मीन्स चेंज इन शेप और साइज, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है. The maximum distortion occurs in region around the poles, while the equatorial region can be shown with reasonably less distortion. और as जो हम मैप ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो जो इक्वेटोरियल एरिया, रीजन ऑन द पोल्स, कि जो पोल्स के जो एरिया हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के जो एरिया हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंज आता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरियाज़ में, जबकि जो एरियाज इक्वेटोरियल रीजन में है, इक्वेटोरियल रीजन मीन्स द एरिया विच इज नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है जितना चेंजेस हमें पोल्स में देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. कि मैप मेकिंग की जो साइंस है, मैप बनाने की जो साइंस है, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी. कार्ट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, मैप एंड ग्राफिक मीन्स ड्राइंग. तो कार्टोग्राफी मीन्स मैप ड्राइंग. अ पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. अ पर्सन हु ड्रॉज मैप, कि वो पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता है, वी कॉल इट कार्टोग्राफर. हम उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. एंड द साइंस इज नोन एज कार्टोग्राफी. Cartographer used a method called map projection to show the curved surface on the of the earth on a flat map. Cartographer जो मेथड यूज़ करते हैं कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व मीन्स घुमावदार जो सरफेस हैं उनको फ्लैट मैप पे शो करने के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं मैप प्रोजेक्शन. क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ मैप्स. Maps are useful for students and common people alike. They are easy to handle and can be carried everywhere. Now students, maps are useful for student as well as for common people. दोनों के लिए useful है map. Map, as I told you, they are easy to handle. We can easily take map from one place to another place.
Maps provide a lot of information of planners, sailors, pilots, drivers, miners, surveyors, engineers, environmentalists and many other people. मैप्स प्रोवाइड करते हैं लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैप प्रोवाइड करते हैं ईच एंड एवरी पर्सन, बहुत सारे पर्सनस को हेल्प करते हैं. सम आर मेंशन्ड हियर, सेलर्स को, प्लानर्स को, ड्राइवर्स को, पायलट्स को, इंजीनियर्स को एंड मेनी अदर. Even the strategies of army depend upon the information provided in map. इवन जो आर्मी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, युद्ध में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप. वो भी मैप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं. अ कलेक्शन ऑफ मैप्स टुगेदर इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन स्टूडेंट. व्हाट इज एन एटलस? एटलस क्या है? A collection of maps, a book in which different type of maps are collected together. कि वो बुक जिसमें different type of maps को हम collect करते हैं, that book is known as atlas. उस book को हम कहते हैं atlas. Clear? Types of map. Maps are of various types that provide different kind of information. Let's learn about some of the most widely used map. Now student, there are different type of maps that provide different type of information to us. Now in this chapter we will read about the types of map. First we will discuss about the political map. Political map shows the boundaries of the administrative unit such as countries, state, district, etc. Different type of boundaries are shown with different symbols. They also show the location of cities, towns and villages. Now student, as you can see, a map is given there, political map of India, in which the boundaries which are mentioned, these are the state boundaries. ये स्टेट बाउंड्रीज हैं जो सेपरेट करती हैं राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब. जो बीच में आपको लाइंस दिखा दे रही हैं, ये पॉलिटिकल मैप में होती हैं जो स्टेट्स को, किसी भी कंट्री को, जैसे नेपाल है, यू कैन सी द नेपाल है और नेपाल को सेपरेट लाइन से शो किया गया है, जबकि स्टेट बाउंड्रीज को हम अलग लाइन यूज़ करते हैं और कंट्रीज़ को शो करने के लिए हम डिफरेंट लाइन यूज़ करते हैं. तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जो किसी भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज की बाउंड्रीज को शो करते हैं, उन्हें हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज फिजिकल मैप. फिजिकल मैप शो द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, rivers, lakes and seas. The different features are shown using different colors. Now student, physical map क्या होते हैं? Physical maps वो map हैं जो earth surface को show करते हैं and land form on the earth surface. As you can see, a map is given above, physical map of India, in which different color are used to show the different physical फीचर्स. अलग अलग कलर्स से हमने अलग अलग फीचर्स को शो किया है. नाउ ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो द नॉर्दर्न माउंटेन. ब्राउन कलर जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइट ग्रीन कलर इज यूज्ड फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स. येलो कलर इज यूज्ड फॉर थार डेजर्ट. द लाइट पीच कलर, दैट इज लाइट ब्राउन कलर, दैट इज यूज्ड फॉर पेनिसुलर प्लेट्यू. एंड द लाइट ग्रीन अगेन, the area is shown for coastal plain, and dark green color is used for islands, Andaman Nicobar and Lakshadweep islands. So student, physical map show the land forms and water bodies on the earth surface. Physical map boundary show नहीं करता है. फिजिकल मैप में केवल लैंड फॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स जो हैं, प्लेट्यूज, माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स को शो किया जाता है. Now next one is topographical maps or contour map. Maps that show great details of both natural and human-made features of a small area with the help of conventional symbols. Next one is topographical map, contour map, या फिर हम इनको सर्वे मैप भी कह सकते हैं,
कि these maps provide minute detail, या हमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स बताते हैं जिसमें हम दोनों तरह के मैन मेड और नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स को यूज़ करते हैं, और फॉर स्मॉल एरिया, किसी भी छोटे एरिया की डिटेल इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सम सिम्बल्स, कन्वेंशनल सिम्बल्स को यूज़ करते हुए मैप बनाते हैं. इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस which have the same height above the sea level are called contours. On these maps, contour lines are used to show the relief features. कि imaginary lines हम इसमें draw करते हैं which join the same height place of the sea level. कि sea level से जब हम height लेते हैं तो same level के जो places हैं उनको join करती हुई जो line है उन्हें हम कहते हैं contours. These map contours lines are used to show the relief features all over the world in geographers, geologists, defense personnel and the surveyors use such type of map. कि पूरी दुनिया में जो जियोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो कंटूर मैप या टोपोग्राफिकल मैप को यूज़ करते हैं. विद हेल्प ऑफ दीज मैप, इन मैप्स की सहायता से हम टाइप एंड साइज ऑफ रोड, कि रोड का टाइप क्या है, किस साइज़ की रोड है, पुलिस स्टेशन की क्या हाइट है, कितने उसका एरिया है, टेम्पल्स कितने हैं, मॉस्क कितने हैं, रेलवे स्टेशंस कहाँ हैं, वेल कहाँ हैं, लेक्स कहाँ हैं, पॉन्ड्स कहाँ हैं. तो स्मॉल इन जो एरियाज़ हैं, ह्यूमन मेड हैं या नेचुरल हैं, इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस सर्वे मैप्स में बता सकते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड आफ्टर कैरिंग आउट अ डिटेल सर्वे. और इस तरह के जो मैप बनाए जाते हैं वो डिटेल सर्वे के बाद बनाए जाते हैं. बहुत ज़्यादा सर्वे किया जाता है, उसके बाद इस तरह के टोपोग्राफिकल मैप ड्रॉ किए जाते हैं. Now next type of map is climatic map. As the name suggests, climatical map shows the weather conditions. Climatical map क्या show करते हैं? Weather conditions like temperature, pressure, wind direction and rainfall. This type of maps are known as climatic map. Next one is tourist map. Tourist maps show details of a places of tourist interest like hill stations, beaches, national parks, historical monuments and so on. तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, नेम से पता चल रहा है, नेम सजेस्ट. टूरिस्ट मैप कौन से होते हैं? जो टूरिस्ट प्लेसेस की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक हिल स्टेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, बीचेस के बारे में, नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. So these type of maps are known as tourist map. Now next last one is thematic map. Thematic map shows the distribution of forest, crop, minerals and industries. Thematic map वो map है जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बनाए जाते हैं और उसकी हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं. As you can see student, a map is given there. This map is a thematic map. इस मैप में क्या शो किया गया है? थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन इंडिया. कि इंडिया में कोल और पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है. दिस मैप इज़ टोटली बेस्ड ऑन अ टॉपिक. ये जो मैप है एक टॉपिक को लेकर बनाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. तो इसमें जो इंडिया में कौन कौन सी प्लेसेस में कोयला पाया जाता है वो एक साइन के द्वारा शो किया गया है. एंड अ की इज़ गिवन हेयर. एक की दी हुई है जिसमें देखिए एक छोटी सी गाड़ी दिख रही है जिसमें आपको कोल दिखा है. तो ये जो साइन बना हुआ है उन एरियाज़ में इंडिया में कोल पाया जाता है. एंड नेक्स्ट साइन इज़ ऑफ पेट्रोलियम. और जिन एरियाज़ में ये पेट्रोलियम का साइन बना है इंडिया में, इस एरियाज़ में पेट्रोलियम पाया जाता है. तो थीमेटिक में मैप वो मैप हैं जो बेसिकली एक टॉपिक को लेकर बनाए जाते हैं. जैसे हम फॉरेस्ट, हमने टॉपिक ले लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो फॉरेस्ट को लेके हमने एक रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक मैप बनाया. तो टॉपिक, द मैप विच आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, दे आर नोन एज अ थीमेटिक मैप, जो एक थीम को लेकर बनाए जाते हैं. एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप्स. Every map is provided with certain features which act as aids and tools and help us to read and interpret it. These are called the essential features of a map. They are title, direction, scales, legend and grid. Every map provides certain aids. कि हर मैप में कुछ aids होते हैं, कुछ helping tools होते हैं जो हमें उसे रीड करने में, उसे समझने में
हेल्प करते हैं. These are known as the essential features of map. इन्हें हम मैप के essential features भी कह सकते हैं. जैसे example title. With the help of title को देखकर हम easily identify कर सकते हैं कि ये जो मैप है किस चीज़ को लेकर बनाया गया है. Directions जो हमें मैप को रीड करने में हेल्प करती हैं. Scale मैप को समझने में आसानी से हेल्प करती है. Legend या फिर जिसे हम की भी कहते हैं, जो अभी हमने मैप में देखा, legend और की. And last one is grid. So these are some essential features of the map. One by one we will read about them. What are the features of these essential, what are the work of these essential features in a map. First we read about the title. Every map has a title which help us what kind of information is being provided in the map. Every map, whenever we draw a map, we have to give a title to it. हमें उसे एक टाइटल देना होता है. With the help of that title we can easily identify the map. We can easily understand the map. हम टाइटल को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये मैप में क्या बताया गया है. For example, a map with the title World Physical shows the major physical features of the world, while a map titled India Agriculture shows the distribution of crops in India. Now example is given here student कि अगर मैप के टाइटल में लिखा है वर्ल्ड फिजिकल, तो हम उस टाइटल को देखकर ही समझ जाते हैं कि इस मैप में वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स को शो किया गया है. एंड अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो देयर, इफ अ मैप इज देयर एंड द टाइटल इज इंडिया एग्रीकल्चर, तो इजीली यू कैन अंडरस्टूड कि इंडिया एग्रीकल्चर, उसमें क्या शो किया गया होगा, क्रॉप्स ऑफ इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में शो किया है कि कौन सी क्रॉप कहाँ ग्रो होती है. ओपन योर एटलस and note the titles of the various map provided there. Now this is the activity student which you have to do. If you are having any atlas book, then open the atlas book and read out the title and try to understand what is there in that map. Now second one is direction. We know that there are 4 cardinal directions: north, south, east and west. But how can you find them in map? Now student, as you know, you have already studied this in your previous class कि 4 type of direction, main direction जिन्हें हम कहते हैं, they are north, south, east and west. These are the 4 main direction जिन्हें हम cardinal directions भी कहते हैं. There is a line, that arrow and the letter N printed above it at the upper right hand corner of the map. If you can see a map, then an arrow is pointed there. एक arrow बना हुआ जिसपे एक लेटर लिखा होता है N, एंड एट द अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द मैप. दिस N जो इंडिकेट करता है, इट इज कॉल्ड फॉर द नॉर्थ लाइन, सिंस द एरो पॉइंट्स टुवर्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ. ये जो N पॉइंट है, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. वंस वी आइडेंटिफाई द नॉर्थ, अगर हमको एक बार पता चल जाता है कि दिस इज द नॉर्थ साइड, देन वी कैन ईजीली मार्क द साउथ. तो हम साउथ को आसानी से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अगर सामने पॉइंट आउट नॉर्थ है, तो जस्ट इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ होगी. ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो हम आसानी से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The directions in between the cardinal directions are called the intermediate directions. Now student, these 4 direction, north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 होती हैं जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. इसके अलावा भी देयर आर 4 मोर डायरेक्शन विच वी कॉल इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जिन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं. दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. In case of north line is not drawn on the map, we should consider the top of the map to be north and the bottom to be south. In case अगर कोई मैप है जिसमें N पॉइंट नहीं दिखाया हुआ है, लाइन ड्रॉ नहीं की, N नहीं लिखा हुआ है, तो इन दैट केस, उस केस में हम अपर पार्ट को नॉर्थ और बॉटम पार्ट को हम साउथ मानकर उस मैप को स्टडी करते हैं. Now student, as you can see, a box is given here in which cardinal and intermediate directions are written. With the help of these box, we can understood about these directions. Now as you can see, a star is drawn here. The topmost point is the
नॉर्थ, टॉप मोस्ट पॉइंट शो कर रहा है, एन लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी साउथ, क्लियर। और राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, क्लियर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये है हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। इसके अलावा 4 हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में जो पॉइंट होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। हमेशा जब हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो हम नॉर्थ और साउथ से स्टडी करेंगे, ईस्ट वेस्ट से नहीं लेना है हमें। जैसे कि साउथ और ईस्ट के बीच का सेंटर का जो पॉइंट है वो हम लेंगे SE, यानी साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के जो बीच का सेंटर पॉइंट है हम उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, क्लियर। और नॉर्थ और वेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है नॉर्थ वेस्ट, क्लियर स्टूडेंट। तो हमें नॉर्थ और साउथ से ही रीड करना है, ईस्ट वेस्ट से हम रीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, clear student, this is all about the directions. Now student, this is all in our today's class. We'll continue this chapter in our next class from scale. That's all for today. Have a nice day and thank you.